السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 585۔ 23واں پارہ سورۃ الصافات، چوتھے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور تحقیق احسان فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور مدد فرمائی ہم نے ان کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پس ہو گئے وہی غلبہ پانے والے۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور دی ہم نے ان دونوں کو واضح احکامات والی کتاب۔ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے رہنمائی فرمائی ان دونوں کی سیدھے راہ کی طرف۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ان پر چھوڑا ہم نے بعد میں آنے والوں میں۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، یہ کہنا کہ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں۔ أَتَدْعُونَ بَعْلًا، کیا تم پکارتے ہو بعل کو، وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور تم چھوڑتے ہو بہترین پیدا کرنے والے کو۔ اللہ ربکم، اللہ جو تمہارے پروردگار ہیں، وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کے بھی رب ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلایا انہیں، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بے شک وہ ضرور پیش کیے جائیں گے۔ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے مخلص بندوں کے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور چھوڑا ہم نے ان پر بعد میں آنے والوں میں۔ سلام علی الیاسین، یہ کہنا کہ سلامتی ہو الیاس پر۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط بھی رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہلاک کر دیا ہم نے دوسروں کو۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم گزرتے ہو ان پر صبح کے وقت، وَبِاللَّيْلِ، اور رات کو بھی۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں کرتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ کے بعد سورۃ الصافات کے چوتھے رکوع کی جو 114 سے 138 تک آیات آج ہمارے سبق کے لیے منتخب ہیں، ان میں 4 رسولوں کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ چاروں رسول اپنے اپنے وقت میں اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے اس رکوع کو شروع فرمایا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ بائی نیم تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، 136 مرتبہ لفظ موسیٰ قرآن کریم میں موجود ہے۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے احوال اس سے قبل آپ سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ رہے ہیں، سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں، دیگر مقامات پہ وقتاً فوقتاً حضرت موسیٰ کا ذکر ضرور آتا ہے۔ یہاں پہ اشارتاً ذکر ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، ہم نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام پر بلکہ ان کے بھائی ہارون علیہ السلام پر بھی احسان فرمایا۔ احسان کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا کسی کو چن لینا، منتخب کر لینا، یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرمائے اسے دین کی سمجھ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان نیکی کرتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، مت سمجھے کہ یہ میری کوئی بڑائی، میری کوئی کمال ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ کی نظر رحمت اپنے بندوں پہ ٹھہر جاتی ہے۔ یہ احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ احسان فرمایا۔ آپ کی پیدائش سے شروع ہو جائیے، اگر میں آپ کو اختصار کے ساتھ ایک جامع نوٹ لکھواؤں تو پھر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، فرعون کو خواب آیا کہ ایک بچہ، ایک لڑکا میری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اس نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا سرکاری لیول پہ کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیا جائے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد کسی نے مشورہ دیا کہ اس طرح تو سارے لڑکے قتل کر دو گے، ہماری غلامی کون کرے گا، کام کاج کون کرے گا، ہماری مزدوری کون کرے گا، ہم تو خود شاہ خرچ لوگ ہیں۔ تو پھر یہ طے پایا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ اللہ کا کرنا ایسا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال میں پیدا ہو رہے ہیں جب بچے قتل کیے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں پیدا ہو گئے، یوکابد آپ کی اماں جان کا نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، یہ بھی اللہ کا احسان تھا۔ پھر آپ نے پڑھا سورۃ القصص کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ان کی اماں نے ایک صندوق میں بند کر کے دریا برد کر دیا۔ وہ دریا میں سے چلتا چلتا بہتا بہتا صندوق پھر فرعون کے محل میں چلا گیا۔ اب یہ ساری تدبیریں تو فرعون کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے کی جا رہی تھی، لیکن ماں پریشان تھی تو اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی فرمائی، یعنی خیال القاء ڈالا اس کے دل میں کہ پریشان نہ ہو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرا بیٹا نہ صرف تجھے واپس ملے گا بلکہ ہم اپنا رسول بھی بنا دیں گے۔ یہ بھی احسان تھا۔ فرعون کے محل میں چلے گئے۔ فرعون پہلے تو سوچنے لگا قتل کر دوں، پاس بیوی کھڑی تھی، کہنے لگی عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، کیوں قتل کرنا ہے؟ این ممکن ہے اتنا خوبصورت بچہ ہے، یا ہمیں کوئی فائدہ دے گا، یا ہم بے اولاد ہیں، ہم اس کو اپنا متبنی ہی بنا لیں، بچہ ہی بنا لیں۔ یہ بھی اللہ کا احسان تھا۔ پھر آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ تمام دائیوں کے دودھ حرام کر دیے تھے۔ بڑی بڑی دائیاں آئیں لیکن موسیٰ کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے تھے، بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ تو جو آپ کو ٹریس کرتی ہوئی آپ کی بہن یہاں تک پہنچی تھی، وہ کہنے لگی مجھے ایک دائی کا پتہ ہے، ایک بی بی کا پتہ ہے، میں تمہیں خبر دوں، امید ہے کہ یہ تمہارا بچہ، تم پریشان ہو، وہ اس کا دودھ ضرور پیے گا۔ تو یہاں سے یہ بہن دوڑتی گھر آئیں اور آ کہنے لگی اماں جلدی کرو، میرے بھائی کو بڑی بھوک لگی ہے، میرا بھائی کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محل میں گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون کی جان میں جان آئی کہ چلو ایک تو پریشانی رفع ہوئی۔ کہنے لگا بی بی روز آ جایا کرو، سرکاری تنخواہ بھی ملے گی، مراعات بھی ملیں گے، ملازم چھوڑنے بھی جائیں گے، لینے بھی جائیں گے، پورا پروٹوکول ملے گا، اور دودھ پلاتی جاؤ۔ یہ بھی اللہ کا احسان تھا موسیٰ علیہ السلام پہ۔ دودھ اپنی اماں کا پی رہے ہیں، تنخواہ سرکاری چل رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بڑے نخرے اور ناز کے ساتھ اماں کہنے لگی مجھے اور بھی بڑے کام ہوتے ہیں، تمہارے بچے کو دودھ ہی پلانا کام نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ فرعون کہنے لگا ایسا کرو گھر لے جاؤ، دودھ بھی پلاؤ، پرورش بھی کرو، سرکاری تنخواہ بھی ملتی جائے گی، مراعات بھی ملتی جائیں گی۔
आसाइशें भी मिलती जाएंगी। तो ये भी अल्लाह का एहसान था मूसा अलैहिस्सलाम पे कि जो आपको कत्ल करवाना चाहता था उसी के हाथों अल्लाह परवरिश करवा रहे हैं। जो आपका दुश्मन बनना चाहता था उसी की जेब से पैसे हजरत मूसा के घर में जा रहे हैं। तो इसी तरह फिर वो जो बस्ती में कत्ल का मामला हुआ, आपके एक मुक्का लगने से बंदा कत्ल हुआ, फिर आपका मदियन जाना, मदियन में वो लड़कियों को पानी पिला देना, उनके जानवरों को, फिर उनके घर तक पहुंचना, शादी होना, वापस आना। और मैं समझता हूं अभी तक मैंने जितने अल्लाह के एहसानात मूसा अलैहिस्सलाम पे वारद होने वाले गिनवाए हैं, आप इन सब एहसानात को एक तरफ रख दीजिए। ये तो एक सरसरी जायदा था। जरा अब तसव्वुर की दुनिया में जाइए कि रात का समा था और सन्नाटा था। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी मोहतरमा के साथ सफर फरमा रहे थे, तो रास्ते में सर्दी की शिद्दत थी। बीवी को एक जगह पे बिठाया, खुद दूर एक अलाव रोशन देखा, कहने लगे मैंने एक आग देखी है, मैं आपके लिए लेके आऊं ताकि कुछ फायदा हासिल हो। ये सारे एहसान एक तरफ अब रहने दीजिए, अब जरा इस एहसान को याद कीजिए। रात का सन्नाटा है, मूसा अलैहिस्सलाम जब आगे बढ़ते हैं रोशनी की तरफ, तो आवाज कानों में रस घोलती सुनाई देती है, इन्नी अल्लाह, मैं अल्लाह हूं। सारे एहसान एक तरफ। ये कितना बड़ा एहसान है। हजरत मूसा को कलीमुल्लाह कहा जाता है। कलीम का मतलब होता है अल्लाह से कलाम करने वाला। कितना बड़ा एहसान है कि मूसा अलैहिस्सलाम रात के सन्नाटे में सुन रहे हैं, इन्नी अल्लाह, मैं अल्लाह हूं। फखला नालई, जूते पीछे उतार दीजिए। इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, आप वादी मुक़द्दस में दाखिल हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद भी नफ्स ब नफ्स और लम्हा ब लम्हा आप पे अल्लाह के एहसानात वारद होते रहे। भाई को भाई के साथ बड़ी मोहब्बत होती है, और हकीकी मोहब्बत ये है, देखिए अगर किसी भाई को अचीवमेंट मिले, वो चाहता है कि ये सिर्फ मेरा एजाज होना चाहिए, मेरे भाई का भी नहीं होना चाहिए। ये एक फितरती अमल है। मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह का यह भी एहसान था कि भाई के लिए सीना फराग था। जब नबूवत मिली, कहने लगे या अल्लाह मुझे नबूवत दिया, मेरे भाई को भी दे दीजिए। अल्लाह करीम ने फरमाया जाओ आपकी ये दुआ भी कबूल, आप भी नबी, आपके भाई हारून भी नबी है। इन तमाम मजमूई एतबार से जो एहसानात हम शुमार कर सके अपनी सवाबदीद के मुताबिक, उनको ज़हन नशीन रखिए और फिर तर्जुमा पढ़िए। वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, हमने मूसा और हारून पे बड़ी नेकियां बड़े एहसान फरमाए, बड़ी रहमतें फरमाई। वनज्जयनाहुमा व कौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, हमने उन दोनों को और उनकी कौम को बड़ी मुसीबत से निजात दे दी। बड़ी मुसीबत क्या थी? या बनी इस्राईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने तुम्हें जहान वालों पे फजीलत दी और तुम्हें आले फिरऔन के जुल्म और सितम से निजात दिलाई। यसूमुनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अबनाकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, तुम्हारे लड़के कत्ल कर देता था, लड़कियों को जिंदा रखता था, इसमें तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी। अब यहाँ पे उसका तज़किरा किया जा रहा है। हमने उन दोनों को और उनकी कौम को कर्ब अजीम से निजात दे दी। सूरह यूनुस में इसकी तफसीलात हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल समेत वहां से पार लगाया और उसी दरियाए नील के अंदर फिरऔन और उसकी फौजों को गर्क कर दिया। व नसरनाहुम फकानू हुमुल गालिबीन, हमने उनकी मदद फरमाई, वो गलबा पाने वालों में फतह याब हो गए। व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन, ऐसी किताब हमने उन दोनों भाइयों को दी जिसके वाज़े अहकामात थे, जिसके तालीमात बड़ी वाशगाफ अल्फाज में थी। वहदैनाहुमुस सिरातल मुस्तकीम, हर बंदे की ये विश है कि मुझे सिरात मुस्तकीम पे चलना नसीब हो। हम हर नमाज की हर रकत में जब सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चलाइए। ये कैसी खुश नसीब नुफूसे कुदसियात हैं कि जिनके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमाते हैं वहदैनाहुमुस सिरातल मुस्तकीम, हमने उन दोनों भाइयों को सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमाई, उनको
सीधे राह पे चला दिया। वतरकना अलैहिमा फिल आखिरीन, वो दुनिया से अपना अपना वक्त गुजार के दोनों भाई तशरीफ ले गए, लेकिन बाद में आने वालों में हमने उनके जिम्मा ये बात लगा दी, सलामुन अला मूसा व हारून। देखिए कितने हजार साल गुजर गए हैं, उसके बाद बावजूद भी हम जब तज़किरा करते हम कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये भी हमारा एहसान था उन पे, हमने बाद में आने वालों पर उनके लिए ये बात डाल दी कि कहा करो सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पे सलामती हो। इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, ये जुमला बार बार सूरत अस्साफ़ात में दोहराया जा रहा है। इन्ना कज़ालिका नज़िल मुहसिनीन, तुम नेकी करने वाले बनो तो सही, हम बड़े कदरदान हैं, हम बड़ी कदर करने वाले हैं तुम्हारी नेकियों, हम नेकोकारों को इसी तरह बदला देते हैं। इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, ये दोनों भाई मेरे मोमिन बंदों में से थे। ये हजरत मूसा और हजरत हारून का तज़किरा यहाँ पे मुकम्मल अल्लाह फरमाते हैं। फिर फरमाया इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, एक और रसूल गुजरे हैं जिनका नाम इलियास है। ये हारून अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र अभी आपने पढ़ा है, हारून अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे अल-यार्ज, अल-यार्ज के बेटे फ़खास, उनके बेटे यासीन थे। उन यासीन के घर में पैदा होने वाले बच्चे का नाम इलियास था। ये दमिश्क का जो शुमाली इलाका है वहां पे बालबक नाम का एक शहर आबाद था, उसकी तरफ अल्लाह करीम ने हजरत इलियास को भेजा। व इन्ना इलियास लमिनल मुरसलीन, इलियास रसूलों में से थे। इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जब उन्होंने अपनी कौम को, वो बालबक जो शहर था, उनसे कहा अला तत्तकून, तुम डरते क्यों नहीं। वजह क्या थी, बाल नाम का एक बुत था बहुत बड़ा, किसी दरख्त के करीब उसको रखा हुआ था और उसी की मुनासबत से वो दरख्त को भी मोहतरम समझते थे, दरख्त की भी पूजा करते, उस बहुत बड़े बाल नामी पत्थर के बुत की भी पूजा किया करते। अल्लाह करीम ने इनकी हिदायत के लिए हजरत इलियास को भेजा। इलियास अलैहिस्सलाम आके कहने लगे तदऊना बालन, तुम बाल की इबादत करते हो, पुकारते हो। व तदरूना हसनल खालिकीन, जिसने सबसे खूबसूरत बनाया है उस अल्लाह को छोड़ देते हो। अल्लाह करीम तुम्हें बनाने वाले हैं, अल्लाह को छोड़ देते हो और जिनको अपने हाथों से बनाते हो उनसे अपनी मनाजात, अपनी मुरादें पूरी करवाने की तमन्ना रखते हो। अल्लाह रब्बकुम, हजरत इलियास इसमें जात के साथ अल्लाह का तारुफ करवा रहे हैं। अल्लाह रब्बकुम, अल्लाह तुम्हारे परवरदिगार है। व रब्बा आबाइकुमुल अव्वलीन, और तुमसे पहले तुम्हारे जितने बाप दादा गुजरे उनके परवरदिगार भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला। फकज़्ज़बूहु, कौम ने क्या किया, झुठला दिया। हजरत काब अहबार रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इलियास अलैहिस्सलाम को जब कौम ने झुठलाया, और वक्त का बादशाह भी जालिम था, काफिर था, मुशरिक था, और वो पूरा इनको अबलाइज करता था शिर्क व बिदआत में अपनी कौम को। हजरत काब अहबार फरमाते हैं 10 साल हजरत इलियास एक गार में जाकर रुपोश रहे इनके जुल्म और सितम की बिना पे। 10 साल के बाद वो बादशाह मर गया, उसकी जगह दूसरा बादशाह तख्त नशीन हुआ। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम फिर कौम की तरफ अल्लाह के हुक्म से तशरीफ ले आए और फिर कौम को तौहीद की दावत दी, हत्ता के सिवाय 10,000 बंदों के सारी कौम मुसलमान हो गई। वो बादशाह भी तौहीद परस्त हो गया, जो वक्त का उस वक्त मौजूदा जो गवर्नमेंट थी वो भी, उसने बहुत ज्यादा हजरत इलियास का एहतराम किया, आपकी तालीमात का, आपकी तबलीग का, आपके मिशन का पूरा साथ दिया, हत्ता के पूरी ये बालबक कौम, ये पूरा शहर मुसलमान हो गया सिवाय 10,000 बंदों के। वो अपने वही बाल बुत के आगे झुकते रहे, शिरक पे बजिद रहे। इस बादशाह वक्त ने उन सब को कत्ल करवा दिया था। ये इलियास अलैहिस्सलाम की तबलीग और दावत का असर था कि पूरा शहर मां सिवाय चंद लोगों के मुसलमान हो गया। इल्ला इबादुल्लाहिल मुखलसीन, अल्लाह के मुखलिस बंदे। व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने बाद में आने वालों
नबियों में हजरत इलियास के ज़िम्मे ये बात छोड़ी, सलामुन अला इलियासीन, ये कहा करो कि सलामती हो इलियासीन पर। इन्ना कज़ालिका नज्जिल मुहसिनीन, हम इसी तरह नेकी करने वालों को जजा देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से थे। 3 रसूलों का तज़किरा मुकम्मल हुआ। चौथे रसूल का जिक्र आज के सबक में, व इन्ना लूतन लमिनल मुरसलीन, लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। तफसीलात पहले 12 मरतबा गुजर चुकी हैं। गौर ज़गर के करीब एक सुदूम नाम की बस्ती थी, पूरा शहर आबाद था, बड़ा जरखेज था, खेती बाड़ी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये लोग थे। तो इनकी तरफ अल्लाह करीम के हुक्म से लूत अलैहिस्सलाम आए। कई एक बुराइयां थी इनमें, रस्तों में बैठ के आवाज़ें कसना, उंगलियों के पटाखे निकालना और कबूतरबाजी करना, और फिर गैर इखलाकी हरकत का इर्तिकाब करना। इन सारी बुराइयों के साथ एक बुराई मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात इस्तेवार करना, ये ऐसी बुराई थी जिसके मौजद यही लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले हैं। इससे पहले दुनिया में किसी को तसव्वुर नहीं था कि मर्द मर्द के साथ बुराई कर सकता है। ये इस कौम ने ये गुनाह, ये फेल ईजाद किया था। लूत अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा गया। इज़ नज्जयनाहु व अहलहु अजमाइन, जब हमने उन्हें और उनके घर वालों को निजात दे दी, सबको। इल्ला अजूज़न फिल गाबिरीन, आपकी एक बीवी थी, सूरह तहरीम में आगे चल के हम पढ़ेंगे। नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाने के बाद अल्लाह फरमाते हैं इनकी बीवियां थी, फ़ख़ानताहुमा, उन दोनों ने इनसे खयानत की। खयानत का मतलब क्या था कि इनके मिशन के साथ गद्दारी की। तो लूत अलैहिस्सलाम की तफसीलात पहले गुजर चुकी हैं, आपको यकीनन ज़ेहन नशीन होंगी कि अल्लाह के हुक्म से 2 अल्लाह के फरिश्ते नौजवान लड़कों की सूरत में आए। लूत अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो गए। खैर, घर जब वो लड़के पहुंचे तो इनकी बीवी की आदत थी कि अपनी कौम को फौरन इत्तिला कर देती थी। इस दिन भी इसने छत पे चढ़ के एक सुर्ख कपड़ा लहरा के कौम वालों को इत्तिला दी, हमारे घर में नौजवान लड़के आए हैं, तुम आके अपनी तलब पूरी कर लो। तो उस वक्त इस कौम के ऊपर अजाब आया था। तो चूंकि ये गद्दार थी, अपने खामंद की अमानत में खयानत करने वाली थी, इसलिए अल्लाह करीम ने उसे एक बुढ़िया के नाम से ताबीर फरमाया। इल्ला अजूज़न, एक बुढ़िया ऐसी थी, फिल गाबिरीन, जो मुड़ मुड़ के पीछे रह जाने वालों में से थी। सुम्मा दम्मरनल आखरीन, हमने दूसरों सबको हलाक कर दिया। हलाकत का अंदाज वो भी मैंने आपको नोट करवाया हुआ है, सिर्फ याद दहानी के लिए दोबारा जरा दोहरा लीजिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, ये जैसे हम बेलचे के साथ जमीन में से मट्टी उठाते हैं ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर मारा, पर के साथ ये पूरी बस्ती को उठाया, ऊपर ले गए। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हत्ता कि इस बस्ती के जानवरों के बोलने की आवाजें उस दिन फरिश्तों ने सुनी थी। ऊपर ले जाके हाइट पे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उल्टा करके छोड़ दिया। अब इतनी हाइट से हजारों मील ऊपर से जब ये कौम नीचे गिरी तो आप अंदाजा कीजिए कि आलिम क्या होगा। फिर यहीं तक नहीं, ऊपर से इन पे आसमान से पत्थरों की बारिश बरसी, और वो डेड सी नाम का एक एरिया है, गूगल पे आप सर्च करें तो अभी भी वो शो होता है, डेड सी नाम का एक एरिया है। उस एरिया के अंदर ये सारे के सारे गिरे, ऊपर से खींगर वाले जो पत्थर होते हैं, नोकीले पत्थर इन लोगों के ऊपर मारे गए और ये सारे तहस नहस हो गए एक बदबूदार झील की सूरत में। अभी भी लोग वहां से गुजरते हैं, जो सियाह हजरात हैं तो वो मुंह पे कपड़ा रख के गुजरते हैं। जहां पे इनकी लाशें जिस झील में थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम की, वहां आज भी बदबूदार पानी खड़ा है। हजारों साल गुजरने के बाद भी आज भी वहां से लोग बड़ी जल्दी से गुजरते हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं हमने दूसरों को हलाक कर दिया। वइन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन वबिल्लैल, और मक्के वालों तुम अक्सर तुम्हारा बिजनेस के सिलसिले में शाम आना जाना होता है तो तुम वही सुदूम शहर से गुजर के जाते हो। ये जैसे हाईवे के ऊपर, बिल्कुल रोड के ऊपर कोई गांव कोई एरिया हो ना, ये एक मोटरवे टाइप 2 सड़कें थी, एक आने वाली एक जाने वाली, उसके सेंटर में ये बस्ती आबाद थी। ये डेड सी जो है वहां पे मौजूद है। तो चूंकि तजारती नुक्ता नजर से ये लोग वहां आते जाते थे तो अल्लाह करीम फरमाते हैं ओ लोगो इन्नकुम लतमुर्रून अलैहिम मुस्बिहीन, तुम सुबह के वक्त भी वहां से गुजरते हो, रात भी गुजरते हो। अफला ताकिलून,
उनके खंडरात को देख के और बदबूदार झील को देख के तुम अकल और फहमो फरासत नहीं इख्तियार करते कि रब की नाफरमानी करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। और जो अल्लाह के अहकामात से टकराव पैदा करे, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इस दुआ के साथ आज का सबक मुकम्मल फरमा लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको इन हजरत अंबिया की जो तालीमात थी, खुसूसन अकीदा तौहीद की तबलीग व तरवीज, मेरे करीम मालिक हमें मरते दम तक अकीदा तौहीद पे इस्तिकामत के साथ कायम रखे। हमारा आखिरी वक्त भी कलमा शहादत, कलमा तय्यबा पढ़ते हुए आए। दुनिया और आखिरत की भलाइयां और कामयाबियां मेरे करीम मालिक हमें नसीब फरमा दें, जिसकी तौफीक से हम अपनी सुबह का आगाज फाहमुल कुरान जैसे अजीम अमल से करते हैं। इसकी बदौलत अल्लाह ताला मेरे और आपके दिन के बाकी मामलात में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा दें। अल्लाह करीम हमें शर शैतान, शर इंसान, बिलखुसूस हम सबको अपने नफ्स की शरारतों से बचने की तौफीक नसीब फरमा दे। ज़ाहरी पोशीदा दुश्मनों की दुश्मनी, हासिदीन के हसद, शरीरों की शरारतों से मेरे करीम मालिक हमें और हमारे अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखें। जो मकरूज हैं अल्लाह उनके कर्ज दूर फरमा दे, जो मजबूर हैं अल्लाह उनकी मजबूरियों को रफा फरमा दे, जो रोजगार की वजह से परेशान हैं अल्लाह करीम ने एक रोजगार नसीब फरमा दे। और खुसूसन दुआ किया करें कि मेरे करीम मालिक हमारी औलादों को नेक और फरमा बरदार फरमा दें। जो साहिब औलाद हैं अल्लाह उनके बच्चों के नसीब मुकद्दर अच्छे फरमा दे। जो बे औलाद हजरात हैं अल्लाह करीम नेक और साले औलाद नसीब फरमाए। फहमुल कुरान से मुंसलिक दूसरे शहरों या दूसरे ममालिक से जो हमारे खातिनों हजरात हैं अल्लाह करीम उन परदेसियों के ईमान की, जान की, शर्मो हया की, माल की हिफाजत फरमा के उनके जुमला नेक हाजात को पूरा फरमा के दुनिया आखिरत की भलाइयाँ और कामयाबियाँ उन्हें भी नसीब फरमाए। बीमारों को शिफाए कामिला अजला नाफिया नसीब हो और अल्लाह हमारे फौज शुदगान की बख्शिश और मगफिरत फरमाए। फहम कुरान क्लास अल्लाह ताला ने सूरह अल कमर में 4 मरतबा फरमाया है, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है। क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? ट्रेंड ये बनाइए, तफसीर की क्लासेस लगाइए, मकासद, मफहूम, मानी, मतालिब, तर्जुमे की महफिल मुनक्किद किया करें। अस्तगफिरुल्लाह किया करो, अल्लाह तुम्हें बेटे नसीब फरमाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह किया करो, अल्लाह माल से नवाजेंगे। अस्तगफिरुल्लाह किया करो, बारिशें बरसेंगी। अस्तगफिरुल्लाह किया करो, हालात मवाफिक आ जाएंगे। फजर की नमाज पढ़ते सलाम फेरते फौरन रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाह इल्म वो अता कीजिएगा जो नफ़े वाला हो। ये दुआ किया करें कि इल्म हमें नफ़े वाला नसीब, जो फायदा दे हमें और हमारे इल्म से लोगों को फायदा हो, ऐसा इल्म अल्लाह नसीब फरमा दे। और रिज़्क़ अल्लाह पाकीज़ा हलाल नसीब फरमा दे, और अमल अल्लाह ऐसा नसीब फरमा दें जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। बड़ी जामे दुआ है, फजर के बाद पढ़ा करें। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब, जो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास पढ़ा रहे थे, जिसे वीडियो तरतीब देकर यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00925352520207 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।